اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روایت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر بھی سالک کو بڑھنے نہیں دیتا۔ روانت میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آدمی کو ذکر اذکار کی وجہ سے یا لطیفہ اخفا کی وجہ سے خفی کی وجہ سے نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شکر بھی سالک کو بڑھنے نہیں دیتا، اور سو منا ہوشیاری میں سالک کو جذب اور شوق کے ساتھ زیادتی منا بڑھنا حاصل ہوتا ہے۔ جب سو ہوتا ہے تب جذب جو ہے اور شوق جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے روحانی طور پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ سالک شکر میں اندھے پرندے کی مثال ہے جو نابینائی کی وجہ سے ان میں سے عاجز رہ جاتا ہے۔ روایت نمبر 39۔ ایک مرتبہ سرد موسم کی آخر میں حضرت مرشد سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سائیں کڑے والے مسافری میں تھے۔ فقیر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ساکن گوٹھ کوروا والا آیا اور آپ کی قدم بوس سے مشرف ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آم کے درختوں میں بھر ہوا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا حضرت درختوں نے بھر بھی نکالا اور ہمیں پھول بھی کھلے۔ اس بات کو سننے کے بعد آپ جذب میں آ گئے اور بہت زیادہ گریہ کیا۔ فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، درخت بھی اپنے موسم میں پتے جھاڑتے ہیں اور نئی ٹہنیاں اور پتے نکالتے ہیں اور پھول اور پھل پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو ہم انسان کس طرح کے ہیں کہ اپنی خباثت اپنی برائی سے باہر نہیں نکلتے اور ساری زندگی اپنی ہستی اور مغروری میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ہم انسانیت نہیں ہے درختوں جیسے نہ بن سکے۔ اصل میں یہ اپنے مریدین کے لیے ہی خطاب ہوتا ہے، اجمالی طور پر اپنے آپ بھی اس میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو نفس ہے نا، ہمارا لواما ملما مطمئنہ، لیکن اپنے آزاد سے نہیں جاتا۔ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے۔ درخت بھی ہر موسم میں پھل دیتے ہیں، لیکن انسان کا جو نفس ہے اس کو 24 گھنٹے 12 مہینے نظر رکھنی پڑتی ہے، اور جس طرح کا نفس ہوگا انسان کی اس طرح کی عادات ہوگی۔ روایت نمبر 40 ہے۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر وقت کے طالب علم کو توکل کرنے اور اسباب چھوڑنے کی رغبت دلاتے رہتے تھے، اور ترک دنیا طالب مولا۔ وہ فرماتے تھے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، مانا وہ چیز ہو لیکن دل نفسانی شیطانی اور شیطانی خیالات میں سے آزاد ہو جائے۔ اگر سامان ہے پھر بھی ساری چیزیں ہیں نفس کی اگر ہیں تو وہ غلط ہیں، اس سے دل کو چھوڑانا چاہیے، وہ مرشد کامل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلکہ توکل یہ ہے کہ کوئی بھی خطرہ نفسانی شیطانی اور شیطانی خواہشات اور مرضی کے مطابق دل کے آگے آنے ہی نہ پائے۔ اس وقت کے فقیر مانا مریدین ایسے ہیں کہ اسباب کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن نفس کے خیالات کے مطابق لوگوں کے دروازوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، تو یہ خرابی ہے ہم میں، اور نفس اور شیطان کے خیالات کو پہچان نہیں سکتے، بلکہ نفس اور شیطان کے خیالات کو علام اور حق کی بات سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل مرے ہوئے ہیں اور حق و باطل کے بیچ میں تمیز نہیں کر سکتے۔ آپ نے مثال دی، مرے ہوئے ہیں کیونکہ بے ہوش ہوتے ہیں، اور 40 سال کے بعد تو کافی چیزیں انسان کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ روایت نمبر 41۔ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سالک کے 2 پر ہوتے ہیں، مانا جو روحانیت کے راستے پر چلتا ہے اس کے 2 روحانی پر ہوتے ہیں، جن سے اڑ کر مانا کے ملک میں جا پہنچتا ہے۔ مانا کا ملک جو اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ فرماتے ہیں ایک محبت کا پر ہے، دوسرا تقویٰ کا پر ہے۔
मोहब्बत अल्लाह ताला जुल जलाल वाले इकराम की और इश्क इतना पक्का हो, उसमें कोई भी गुंजाइश न रहे कमजोरी की। दूसरा तकवा ज़ाहिर शरीयत मुतहरा के ऊपर हलाल हराम की सारी तमीज रखना, इसको तकवा कहता है। और वो अगर इन दोनों में से एक टूट जाए तो माना कि मुल्क की तरफ परवाज नहीं हो सकती, यानी कि दोनों लाजमी है। आगे जो है मलकुत तक तो मजजू पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे जो है दोनों पर होते हैं। तकवा और मोहब्बत ये दोनों लाजमी है। शरीयत मुतहरा ज़ाहिरी और बातनी होगी तो आगे पहुंच जाएगा, अगर नहीं है, एक भी नहीं है, तो फिर उसकी आगे परवाज मुमकिन नहीं है। आयत नंबर 42, साईं महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह अक्सर वक्त मुरीदीन को वाज़ और नसीहत फरमाते थे कि दोस्तों होशियार आगाह रहो, तुम्हारा अजीज व करीब भी जो कि तुमसे पहले थे वो कहाँ गए। दुनिया फानी है, दुनिया के हयाती पर कोई भरोसा नहीं है और न ही इस पर इतबार करना चाहिए। अल्लाह ताला जुल जलाल वल इकराम की तलब करो, दिल का रुख अल्लाह ताला की तरफ करो, क्योंकि ये जिंदगानी के सांस जो तुम्हारे पास है वो अल्लाह ताला जुल जलाल वल इकराम की अमानत है। और जो अल्लाह ताला जुल जलाल वल इकराम की अमानत को नफसानी ख्यालात, शैतानी ख्यालात में जाया करेगा तो खाइन कहलाएगा, ख्यानत करने वाला कहलाएगा। अगर एक गुजरे सांस के लिए लाखों रुपए भी खर्च किए जाए मगर वो लौट के नहीं आएगा और न ही कोई उम्र इंसान की लंबी होगी। इसलिए जो भी घड़ी है वो जिक्र अज़कार है, तात है। मिसाल आदमी बिजनेस करता है, नौकरी करता है तो ईमानदारी से करे, किसी से ठगी न करे, किसी से झूठ न बोले और सालिड रहे तो इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होगा। रवायत नंबर 43, फरमाया कि किसी का माल खोया नहीं है, माना किसी की चीज कोई खोई हुई नहीं है। अगर खो गई होती तो आज जरूर उसको खोज लेता है वो चीज कहाँ है और उसके लिए बेकरार होता। इस जगह पर इसको अगर किसी जगह पर उसको पता चलता कि वो चीज वहां पर है तो वहां जरूर पहुंचता कि मेरी चीज वहां पर है। आपने फरमाया कि आज अल्लाह ताला जुल जलाल वल इकराम का कोई तालब नहीं है, मतलब अल्लाह को तलब करने वाला कोई नहीं है, बल्कि हर एक अपने नफ्स के ख्यालात और हिर्स में मुब्तला है। नमाज पढ़ते हैं या दूसरे करते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं। माने इसका मकसद ये है कि उसका दिल जो है वो एक जगह पर टिका हुआ नहीं है। तो अल्लाह ताला की तरफ जब आदमी रुजू हो जाए तो दिल को हर ख्यालात से फारग करे। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला जुल जलाल वल इकराम की तलब में कोशिश की जाए और मुखलिस होकर कोशिश की जाए तो जरूर ब जरूर मकसूद को मंजिल को आदमी पहुंच जाता है। रवायत नंबर 44, फरमाया कि तालिब को चाहिए कि कसरत पर नजर न करे बल्कि वहदत कोनो मकाम से अलग ढूंढे। कसरत माने रजमाली जहाँ माल मुनासिब में रहते हैं इस पर नजर न करे। अगर उसकी तैयारी है, कंप्लीट है, अंदरूनी सिस्टम उसका चल रहा है तो वहदत पर नजर करे। उस पर एक तो दुनिया के हालात के, आलम नासूद के हालात की जो भी है, सुख है दुख है, उसको पर असर नहीं होगा। आपने फरमाया जो तंजिया से तशबीह को ढूंढते हैं वो बेहिम्मत मर्द हैं, क्योंकि वो उरूज से नज़ूल की तरफ लौटता है और हकीकी मकसूद से महरूम रह जाता है। रायत नंबर 45, एक फकीर मगरिब नमाज के बाद झोंपड़े के साथ खड़ा होकर सिंधी में शायरी पढ़ रहा था। उसको देखकर आपने फरमाया कि फकीर दिल में निगाह कर और दिल के साथ मशगूल हो जाओ, ये शायरी तुमको काम नहीं आएगी। उसने मावरतन कहा कि मुझे घोड़े लात लगा गए, आप मालूम मेरे मुर्शिद इस बात पर कुदरत रखते हैं कि आप जान छुड़ाएं। आपने फरमाया कि जिसकी नजर पूरी नहीं होगी उसको जहां भी वो आदमी होगा उसको घोड़े लगा जाएंगे, लात लगा जाएंगे। मकसद ये है कि यकसोई जो है अल्लाह ताला की तरफ भली काम काज करिए लेकिन यकसोई कायम रखे। वो ये एक प्रैक्टिस होती है और उसमें
कुरान पाक में भी आया ना कि सोते हुए करवट बदलते हुए जिक्र उनका जारी सारी रहता है, तो सोते हुए लाजमी कलमी जिक्र ही होता है। इसी तरह तवज्जो जो अल्लाह ताला के साथ, तो तवज्जो का भी एक सिस्टम होता है। तवज्जो तो अल्लाह की तरफ रहे और काम काज भी करे तो हो जाते हैं काम काज दुनिया जो उसके असबाब होते हैं, लेकिन काम काज में तवज्जो हट जाए और तो समझे कि हम में कमजोरी है, अभी हमको मेहनत करनी चाहिए। फिर आपने मखदूम अब्दुल करोड़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर पढ़ा, मुंह कर मंझे ही, माना चेहरा अपना अंदर में देख, बाहर ढूंढ मत ढोर जी, बाहर ना उसको ढूंढो डंगर की तरह। कट्टी यारे साफ कर तो कम थी, तो बर्तन जो अगर साफ होगा तो फिर इंसान का रूहानी बर्तन जो है वो साफ होगा, अपना कल्ब तो काम होगा। रायत नंबर 46 आप फरमाते हैं कि साहब का मशाइख कराम फरमाते हैं कि जिस आदमी का दिल जो है, दिल को इतना हुजूर हासिल नहीं हुआ है कि वो आंख और कानों को सुनने से रोक, देखने, आंखों को देखने से और कानों को सुनने से रोक सके, तो ऐसे आदमी को कोई भी बात माना तबलीग और रुश्द हिदायत की कहना दुरुस्त नहीं है। माना अपने कान जो है उनको भी और अपनी आंखों को भी ये रौनक में प्रैक्टिस कराते हैं। बातनी औजार या गैरुल्लाह को न देखे, जारी आंख जो है वो शरीयत मुतहरा के तहत रखे, नाजायज चीजों को न देखे। इसी तरह कान जो है उसको गैर शरई चीज न सुने, न किसी की गिबत न कोई और, तो वो अगर देखेगा और सुनेगा तो फिर ऐसा आदमी तबलीग दीन की न करे, क्योंकि उसका असर नहीं होगा। आप फरमाते हैं मगर उसको दिल का इतना हुजूर हासिल हुआ है, मानो अपने आप पर कंट्रोल कर सके, तो फिर कोई बात नहीं, वो तबलीग और हिदायत करे तो जायज है। इसके बाद फरमाया कि आपने फरमाया कि बेहतर है कि बात करने से अगर तबलीग ना हो तो खामोश बैठा रहे, क्योंकि बात करने में गड़बड़ ज्यादा होती है, उसमें गैर शरई चीजें भी निकल जाती हैं, किसी को उसे गपशप लगाने में तो बड़ी गड़बड़ होती है। इसलिए आदमी, ऐसा आदमी चाहे तो खामोश रहे। रात नंबर 47 एक दिन फकीर लाल मोहम्मद, ये हालाकंडी वाले हैं, काजी साहब गुलमंद हालाई के खानदान के हैं, और हमारा दोस्त जो अब्दुल हफीज कुरैशी उनके रिश्तेदार बड़ा बड़े पुरखे होकर गुजरे। एक दिन लाल मोहम्मद फकीर साईं महमूद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मैं अब्दुर्रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतह अल फज़ल में मौत के बाबत ये बयान किया है, क्या बयान किया है? तो जवाब दिया कि जवाब में लाल साईं ने उससे पूछा, साईं महमूद ने, कि मौत के मुतल्लिक अपने किताब फतह अल फज़ल में क्या बात की है? तो जवाब में आपने फरमाया, जवाब में लाल महमूद ने कहा, साईं महमूद ने सवाल किया था, मन नसी अल मौत फलैस बेमुस्लिम, माल तर्जमा जो मौत को भूल जाए वो मुसलमान नहीं है। माना मौत को अगर भूल जाएगा तो लाजमी उसका नफ्स जो है, जो दुनिया में रहना चाहता है, जो आलम नासूद है, तो फिर उसको अल्लाह ताला का ख्याल नहीं आएगा, आखिरत का ख्याल आएगा, तो उसका नफ्स जो है वो उसको गुमराह करेगा, ये नुकसान में रहेगा बंदा। तब साईं महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि देखो बुजुर्गों ने कितना अच्छा लिखा है। आपने गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि मौत की याद अच्छी है या अल्लाह ताला जुल जलाल की याद अच्छी है? आपने वजाहत करते हुए फरमाया कि मौत की ये याद इस मोहम हस्ती, माना पुरफरेब हस्ती को तोड़ने वाली और नाबूद करने वाली है।
माना मौत को याद करने से क्या होता है कि जो हमारी हस्ती है, हमारा नफ्स जिसके ऊपर गालिब है, नफ्स के ख्यालात इरादे टूट जाएंगे। जैसे कसाई के सामने बकरे या किसी जानवर को लाते हैं ना, देखो उसका क्या हाल होता है। इसी तरह अगर मौत की याद आएगी तो मौत तो नफ्स के ऊपर है, कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, इसलिए वो ज्यादा पर नहीं निकालता, इसलिए रूह का गलबा ज्यादा हो जाता है और रूह की तवज्जो सारी अपने मालिक अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ होती है। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम की याद जो है सालिक के ज़ाहिर और बातिन को संवार लेती है। और अल्लाह ताला का जिक्र जो है, इस वक्त आप कमाल ज़ौक़ में आ गए और सच्चे मोतियों की तरह आंसू बहाने लगे और इसी कैफियत में फरमाने लगे कि दोस्तों कितनी नेमत उज़्मा है, लेकिन कोई इस नेमत की कदर नहीं करता और ना इसकी तरफ तवज्जो करता है। माना ये नेमत अल्लाह ताला को याद करने वाली, और अगर कोई इस नेमत की तरफ आए तो कितना ज़ौक़ हासिल करे। इन अल्फाजों को कामिल ज़ौक़ से 3 मरतबा दोहराते रहे। सुभान अल्लाह। रवायत नंबर 48 से एक दिन फरमाया कि आज इस जिस्म माना अपनी हस्ती को अच्छी तरह ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सिर्फ देखने की है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। ये बदन मिसल तुलसम यानी तस्वीर के पूरा है। अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम ने इसको अपनी सिफात से बनाया है और इस बदन में ख्यालात की कतारें आ जा रही हैं। अगर बातिल ख्यालात आते हैं तो बदन बातिल हो जाता है, और अगर हक के ख्यालात आते हैं तो बदन को हक कर देते हैं। इस तरह मसनद शरीफ का आपने शेर पढ़ा, उसका तर्जुमा सुना रहा हूं कि भाई तू सिर्फ ख्याल है, ख्याल के सिवा बाकी सिर्फ हड्डियां पट्टे हैं। अगर तुम्हारे ख्याल फूल है तो तुम गुलशन हो, अगर तुम्हारे ख्यालात कांटे हैं तो तुम जलते हुए अंगारे हो। रवायत नंबर 49 फरमाया कि तरक्की साल के दर्द के साथ है। माना जो आगे बढ़ोतरी होती है इंसान की रुआनत में, उसमें अगर दर्द है जुदाई का अल्लाह ताला का तो हुजूर का, तो फिर उसको तरक्की मिलती है। वो फरमाया कि दर्द साल के पंख और पर है। सुभान अल्लाह। रवायत नंबर 50 फरमाया कि मुर्शिद जब अव्वल में मुरीद को दिल के जिक्र से मशगूल करता है तो नया मुरीद पहले जिक्र के ख्याल के साथ मशगूल होता है, बाद में इस ख्याल को बदल कर खुद ही जिक्र हो जाता है, फिर ख्याल और फिक्र हो जाता है, और जब उसका फिक्र भी तमाम हो जाता है तो जिसका फिक्र किया था वो सूरत हो जाएगा। इस वक्त सालिक के शक व शुकूक सब चले जाएंगे और उस वक्त इस सालिक का वजूद आग की तरह हो जाएगा और उसका जज्बा होगा हलमन मजीद। मेरा जिक्र जब करेगा तो उसमें जो फना हो जाएगा तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना तो नूरानी आती है, तो इसका रूह कहता है कि और भी ज्यादा आ जाए और उसका इंसान का जो शौक ज्यादा होता है। सुभान अल्लाह। रवायत नंबर 51 किसी फकीर ने साहिब महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में अर्ज किया कि हज़रत रूह लतीफ है, फिर क्यों नफ्स के आगे कमजोर पड़ जाता है। रूह लतीफ पर होता है और ये हमारा नफ्स जो कसीफ होता है। साहिब महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि नफ्स के घर में जो जगह ले ली है इसने, माना हमारा जो जिस्म है जो गोश्त पोस्ट का बना हुआ है, आलम नासूदन जहां हम रहते हैं उसको आलम नासूद कहते हैं, और ये इसका घर है, रहने का, खाता पीता है, दूसरी चीजें जानवरों जो इसमें सारी होती हैं। उसमें जो मलकूत की चीज जो आ गई है रूह फरिश्तों जैसी चीज है, लाजमी इसका रूह का घर तो नहीं है ना, तो जब इधर आता है तो लाजमी है वो निजामत करता है नफ्स जो शैतान जिन है कि ये ना है मेरे पास या इसका कंट्रोल ना हो मेरा हो। तो आप फरमाते हैं कि नफ्स के घर में जगह लिए इसलिए मगलूब होता है कि भाई इसका कंट्रोल रहता है, जहां नफ्स चलना चाहता है ये चला जाता है, क्योंकि इसके अल्लाह ताला ने इसको जिस्म में कैद किया हुआ है रूह को। रूह अगर इस नफ्स के घर का था छोड़ दे, माना मोतू का बुलंद मोतू वाली कैफियत अगर आ जाए तो फिर हरगिज़ रूह कमजोर नहीं पड़ेगा। इस पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया
جب تم خود سے بری ہو گئے تب تم سارا حق بن گئے، اندھیرا ختم ہوا اور تم نور بن گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو خود سے بری ہو گیا وہ نفس سے آزاد ہو گیا، تب جا کر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کا وصال پائے گا۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خود کو بھول جاؤ، پھر دوست کی طلب کرنے کا کوئی احتیاج نہیں۔ منع اگر میں ختم کرے گا، نفس کو ہٹائے گا اور دعوت نہیں کرے گا جسم کے اوپر روح، تو لازمی ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا اور اس کو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ تصوف میں یہ فنایت کا ہی درس دیا جاتا ہے۔ فنایت یہ ہے کہ روح جو آیا ہے کہتا ہے کہ میرا گھر ہے جسم کے لیے، اگر اس کا دعویٰ ہی چھوڑ دے گا تو پھر نفس کی اس کے اوپر ایک بھی نہیں چلے گی۔ روح جو اپنے مقصود کے طرف روانہ ہو جائے گا۔ مالا موتو قبل ان تموتو، یہ نہیں کہ فوت ہو جائے جیسے ایسے نہیں، وہ زندہ رہتا ہے ظاہر جسم، لیکن وہ لازمات جو ہیں روح جیسے ظاہری جسم سے اس کی موت آتی ہے چلا جاتا ہے روح عالم میں برزخ میں، اسی طرح ایسے ہی ایک سبق ہے۔ حدیثیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، عبداللہ بن عمر کی ہیں۔ آپ نے فرمایا اجمالی ہے اہل مماتی میں سے سمجھو۔ سیدنا صدیق اکبر کے متعلق آپ نے فرمایا، میں نے ایک جگہ پر پڑھا، آپ نے کہا کہ تم نے ایسا کوئی آدمی دیکھا جو زمین پر چلتا لیکن فوت شدہ ہو؟ تو صحابی جو ہیں جن کو یہ سبق نہیں ملا تھا وہ حیران ہو گئے۔ آپ نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کو دیکھو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ پھر عبداللہ بن عمر کو آپ نے یہی فنایت کا سبق دیا کہ اپنے کو اہل قبور میں سے سمجھو۔ تو یہ فنایت کا سبق ہے جس کو موتو قبل ان تموتو کہتے ہیں۔ روایت نمبر 52 ہے، فرمایا کہ ایسا آدمی ہے یا نہیں جو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات کرے یا سنے؟ پھر فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات وہ کرے گا جو اپنے دونوں ہاتھ دنیا کے کاموں سے دھو ڈالے گا۔ کام کاج کرے گا لیکن جیسے موہ ہوتا ہے نا کہ محبت دنیا کی جیسے عام ہوتی ہے دنیا داروں کو یا جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ کام کاج کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن موہ اصل میں روحانیت میں موہ جو ہوتا ہے نا ایک لگاوٹ ہے وہ توڑی جاتی ہے۔ بزنس کرے کیا بھی کرے، صحابہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، وہ جنگی جو چیزیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار والا کام کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام بڑے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سنا ہے کہ وہ ہل چلاتے تھے۔ نوح علیہ السلام والے ہیں، دوسرے انبیاء ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ کافی انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بکریاں بھی انہوں نے چرائی ہیں، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کا توجہ جو دل کا وہ تو انبیاء ہے، لیکن اولیاء اللہ یا صحابی کا آپ کافی ایسوں کی مثال سنیں گے کہ کام تو کرتے تھے اپنا، لیکن ان کی توجہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی تھی۔ یہی کمالت ہے۔ اسی وقت مولوی میاں شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کتاب سلک السلوک میں لکھا ہے کہ ایک شخص بادشاہ ہارون رشید کی زوجہ پر عاشق ہو گیا۔ یہ خبر جا کر ملکہ کو پہنچی۔ اس نے اس آدمی بلا کر کہا میں بادشاہ کی بیوی ہوں، مجھے اس تہمت سے کیوں خوار کرتے ہو؟ اس وقت ہوتا 2022 میں جس طرح کہ ہمارا بڑا سیاستدان ہے سندھ کا، تو اس کے اوپر الزام ہے، کیونکہ ثابتی تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ غیبت ہوگی، تو اس کے اوپر الزام لگا کہ بھئی اس نے فلاں شخص کو قتل کرایا تھا، کہ اس کے ساتھ وہ تعلق تھا اس کی فیملی کا کوئی، تو وہ تو ہے چھپی ہوئی چیز، لیکن جو ہے الگ چیز ہے۔ اور اس وقت کے جو حکمران تھے وہ ایسے نہیں تھے، نیک تھے۔ ملکہ زبیدہ تو مشہور ہے،
उस औरत ने कहा कि अभी मुझे ख्वाब न करो, अब 3,000 रुपये लो और मेरे इश्क की दावा छोड़ दो। इसने कहा मैं दावा नहीं छोड़ूंगा, मैं बकवास करता रहूंगा। तब मलका ने कहा 6,000 रुपये लो और इस चीज को बकवास बंद करो। तब इसने कहा मैं दावा नहीं छोड़ू। तब आपने बढ़ाते बढ़ाते रकम वो 10,000 तक बात हो गई। तब वो मर्द जो कि दुनिया के पैसों और माल का आशिक था, इसने 10,000 की तमा की और झूठी दावा इश्क से दस्तबरदार हो गया। तब चूंकि उसने मलका को बदनाम किया था और ये शादीशुदा औरत थी, इज्जत तो तकरीम होनी चाहिए अपने हुक्मरानों के लिए भी आदमी के दिल में। तो बादशाह उस रानी जुबैदा खातून रहमतुल्लाह अलैहा ने उसको सजा दिलवाई। फिर लोगों ने अर्ज किया कि मलका साहब ये बेचारा तो 10,000 रुपये पर इश्क की दावा से 10,000 हो गया है, इसको सजा क्यों दी जा रही है। तब मलका में दरवेश थे, उसने कहा कि ये अपने दावा में झूठा साबित हुआ इसलिए और झूठे की सजा ये। तब साईं महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मर्द वो है जो अपने दावा में सच्चा साबित हो, जो झूठा होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ये ना हो कि अल्लाह की तलब करे माल मिल जाए तो फिर वो माल पर गिर जाए। अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम का जो सच्चा तालब है वो किसी मुराद पर राजी नहीं होता। अगर राजी हो गया तो अल्लाह ताला उसको नहीं मिलेगा, वो महरूम हो जाएगा। बेहतर है कि आदमी दावा के ऊपर सच्चा रहे तो अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम इसके ऊपर अपनी अता और मेहरबानी वाला हाथ रखेगा और बहुत ज्यादा फजल करेगा। इसी बात पर आपने ख्वाजा हाफिज शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर पढ़ा फारसी में, तर्जुमा, मैं तलब को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी मुराद पूरी ना हो जाए, या ये दम महबूब को जा पहुंचे या जान निकल जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। रात नंबर 3 जहां फरमाया कि जब तक तालब को इस जान की ख्वाहिश होगी तब तक उसको आलम माना से हरगिज़ वाकिफ नहीं करते। और नफ्स का ख्याल आलम नासूत में जब तक इधर उसका दिल लगा रहेगा तब तक अल्लाह ताला उसको आगे नहीं बढ़ाता। जब चाहते हैं, जब अल्लाह ताला चाहता है तो पीर तरीकत जो है उसको दुनिया के जो ख्यालात हैं, जो भी मोह है, उससे जान छुड़ाता है। और अल्लाह ताला खुद भी ऐसा करता है। जब अल्लाह ताला किसी को आगे बढ़ाने का इरादा करता है तो पहले दर्जा बदर्जा इस जान फानी से उसका उन्स और ताल्लुक छुड़ाता है। इसके बाद उसके लिए आलम माना का मानू पर वाले दराज खुल जाते हैं। इस पर साईं महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का एक बुजुर्ग था, उसकी शायरी पढ़ी सिंधी में, जैके बचो जान में को जोर आरजू सो मोहत मूर न थे मुशरक मुंह बमू, जैके बची जान में जरो का मुराद सो इस्लामा नहीं हो कारो कुफर कराद। पुराने जमाने की सिंधी है। तर्जुमा है कि जिसकी जान में कोई भी चीज मन आरज़ू बची है तो हरगिज़ वो मोहत नहीं होगा, वो मुशरिक ही है। कि जहां पर अल्लाह है वहां पर कोई चीज नहीं है। इसी तरह ये जिस्म हमारा, ये जो कल्ब है, इसमें अगर दूसरी चीज का भी ख्याल हो, अल्लाह का भी ख्याल हो, तो वो रूहानी तौर पर मुशरिक कहलाता है। अल्लाह है तो फिर अल्लाह का ही कंट्रोल होना चाहिए कल्ब के ऊपर। पूरे तरीकत यही तो करते हैं। ज़ाहिरन मूर्ति पूजा, फला पूजा, भाई ये इतराज़ात करते हैं, लेकिन अंदर में जो है दिल में 15 ख्यालात होते हैं, नमाज पढ़ते हुए ख्यालात होते हैं, तो अंदर में तो रूहानत के हिसाब से वो आदमी मुशरिक है। अब नमाज ज़ाहिर तो ऊपर पढ़ता है। इस बात पर एक बात याद आई, हदीस शरीफ की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, एक सहाबी था, नया होगा, तो या उसने हुजूर को सही सोबत इख्तियार नहीं की होगी, एक मरतबा देखा होगा, आया नमाज पढ़ी और जाने लगा। हुजूर ने कहा दोबारा पढ़ो, 3 मरतबा कहा, तो 3 मरतबा उसने नमाज दोहराई। जब गया तो आपने साहबा का जो हाजिर मजलिस में मौजूद थे,
آپ نے فرمایا کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آ کر مرغی کی طرح ٹھونکے لگا کر چلے جاتے ہیں. مانا اس کا دل جو تھا صحابی کا، ایسے اور بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، دل کا دل. آپ نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور قلب، حضور قلب نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. یہ شرائط ہے نا، احسان اختیار کرو، اللہ کو دیکھو، یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. باقی رسمیں ہیں ساری. تو یہ حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے. اور بزرگان دین جو ہے اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی اپنے جو خیالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو، نماز میں یا ویسے ذکر اذکار میں بھی، اور دل میں دوسرے کسی کا خیال نہ آئے. رات نمبر 54 فرمایا کہ طالب کو چاہیے کہ جب تک کام اپنا پورا نہ کرے تب تک لوگوں سے، ان سب میلاب سے دور رہے. کمال فنایت جو ہے اللہ میں، بقا جو ہے جب تک حاصل نہ کرے، عام آدمیوں سے نہ ملے. کیونکہ اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی جو ہیں ان میں نفس تو زندہ ہوتا ہے نا، ان کے خیالات کی وجہ سے، ان کی باتیں سننے کی وجہ سے، ان کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے اس آدمی جو اللہ کی طرف جو جا رہا ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر کالک آ جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے بہت بڑا. اس لیے بہتر ہے کہ عنصر میلاب نہ رکھے. ہاں مگر شرعی مجبوری ہو تو پھر وقت گزاریں، لیکن وہ احتیاط سے. کیونکہ دنیا مورز کھانا ہے، مانا پوٹی کھانا ہے، پوٹی جہاں کرتے ہیں. اور مورز کھانے میں مانا پاخانے کی جگہ پر کوئی احتیاط کے بغیر نہیں جاتا. کیونکہ مورز کھانا رفع حاجت کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں. رات نمبر 55 ہے فقیر طالب المولا نامراد ہی اچھا ہوتا ہے. مانا سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا اگر اس کو مراد ہے دل میں تو رکاوٹ ہے. اگر مرادوں سے ہٹ گیا، خواہشات اس کی جو ہے نفسانی وہ ہٹ گئی، تو یہ اس طالب کے لیے جو اللہ کا طالب ہے اس کے لیے بہتر بات ہے. اور وہ دنیا فانی میں کوئی اپنی مراد جو ہے وہ حاصل نہ کرے. کافی ایسے بزرگ ہیں جن کو حکومت وقت نے زمانوں کے حساب سے کوئی چیز دینی چاہے انہوں نے نہیں لی، لیکن اگر لی بھی ہے تو خلق کی خدمت کے لیے لی ہے، اس میں خود تصرف نہیں کیا. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کے متعلق آدمی نے پوچھا، اس کی حکومت تھی، آپ ولایت کے شہنشاہ امام ہیں. تو مولا علیہ السلام کا آدمی نے لنگر کھایا، مسجد میں دیکھا کہ آدمی سوکھی روٹی جو ہے ڈبو کر کھا رہا ہے پانی میں. تو اس نے ان کو کہا یار وہ آدمی شاید اس کو کھانا میسر نہیں، اس کو دو. اس نے کہا یہی تو حکمران جو کھا رہا ہے ایسا. تو وہ تو آپ کو سیاست نہیں کر رہے تھے، وہ تو آپ سوکھی روٹی وغیرہ اس لیے کھا رہے تھے کہ مجبوری ہے تاکہ جسم تارک رہے، اور جو نفس جو ہے وہ اچھی غذات جو ہے اس کے اوپر نہ اس کا دل کہے. اس طرح نفس کا کنٹرول ہوتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا علی مولا ایک جنگ میں تھے تو کافر کو مارنے لگے. دیکھو نا مثال دے رہا ہوں حدیث شریف کی. تو اس نے کیا، جب آپ نے اس کو گرایا زمین پر، اس کو مارنے لگے تو اس نے اوپر جو تھوک دیا. سیدنا علی کرم اللہ جو اپنا چہرہ مبارک صاف کرتے اٹھے، اور آپ جب نارمل ہوئے تو پھر اس کو پکڑنے لگے. تو اس آدمی نے کہا ٹھہرو، دیکھو میدان جنگ میں یہ بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا تم مجھے مار دیتے ہو، میں نے نفرت سے یہ کیا سب کچھ. تو میں نے کہا مر تو ویسے ہی رہا ہوں. اس کافر نے کہا میں کیوں کو اپنے دل کا بھڑاس جو دل کی بھڑاس جو وہ نکال لوں، لیکن تم کو تو مجھے مارنا چاہیے تھا، مجھے چھوڑا کیوں؟ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے میرے اوپر جو ہے گستاخی کی تو میرے نفس کو غصہ آیا. تو میں نے کہا کیونکہ حضرت علی کا منا جو نفس کے حکمران تھے اس کے اوپر آپ کی لات رکھی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا میں اللہ کی خاطر تم کو مار رہا تھا. جب تم نے تھوکا تو میں نے دیکھا نفس میں تھوڑا تحرک ہوا تو میں نے پیچھے ہٹ گیا. میں نے وضاحت کر رہا ہوں، ساری چھوٹی چیز لکھی ہے، وضاحت کا کسی کو پتا نہیں ہے، جو درویش ہے ان کو پتا چلتا ہے. نفس کے غصے کا رنگ
اور لطیفہ نفسی کے رنگ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہے جلالی کیفیت بھی اس طرح ہوتی ہے، اس کا رنگ بھی اس طرح کا ہوتا ہے. تو دونوں رنگوں کو پہچاننا یہ مولا علی کا کمال تھا. ایک طرف سرخ رنگ ہے، ادھر بھی ہے، اور دونوں بھائی کے ہیں، تو جو پہچانے تھے یہ جلال ہے، یہ نفس کا رنگ ہے. جو اس کو پہچانے گا وہ مرد مجاہد کہلائے گا. تو مولا علی جو تھے مرد تھے، شاہ تھے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، وہ تھے، وہ پہچانتے تھے اسی چیز کو. تو صاحب محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان چیزوں سے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا فانی میں کوئی بھی مراد حاصل نہ ہو، مانا اللہ تعالیٰ کا طالب وہ ہے. کوئی بھی چیز دوسری ملتی ہے بغیر مانگے ہوئے، لیکن اس کا بھی استعمال یہ ہے کہ تھوڑا استعمال کرے باقی باندھ دے. باقی یہ نہیں کہ اس کے اوپر تکیہ کر لے. مانا پھر اس طالب المولا میں جو ہمارے اس وقت کے 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں حیدرآباد کراچی میں یا سارے پاکستان میں عامل جو بیٹھے ہوتے ہیں، جناتی بابا بنگالی بابا، اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے ہوشیاری کریں. رات نمبر 56 فرماتے ہیں کہ مردانی کی ہمت ہو، مانا ایم اس کا ہو، ہمت ایسی کرے کہ ہمت کے بغیر اور کچھ نہ رہے اس میں، مانا اتنی ہمت کرے. بے ہمت کا معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ذوالجلال بھی ہمراہی نہیں ہوتا. ہمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ حدیث شریف میں کہ بندہ ایک قدم آتا ہے میں اتنے قدم چلتا ہوں، پیدل آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا آتا ہوں. تو ہمت کرے گا تو اللہ رب العالمین کو دوڑتا ہوا دیکھے گا اپنے طرف آتے ہوئے. اللہ تعالیٰ خود مشتاق ہوتا ہے ایسے بندوں کا. جیسے قرآن پاک میں فَذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یہ کیا ہے؟ دلی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے. مانا یہ ظاہری مانا بتا رہا ہوں. تو اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ساری، کہ ہمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دے گا. اگر ہمت نہیں کرے گا تو اس کا رب العالمین ساتھ نہیں دیتا. راحت نمبر 57 فرمایا کہ یہ راستہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام والا یکسوئی اور ایک یک رخی کے بغیر طے نہیں ہوتا. من یکسوئی کرے گا تو راستہ طے ہوگا. ہاں یکسوئی ضروری ہے. اگر طالب جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے اور کبھی دنیا کے کاموں مانا دلی طور پر مشغول ہو جائے تو مانا دل نہیں لگانا، دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے. تو ایسا آدمی حرص والوں میں سے اللہ تعالیٰ کا طالب نہیں ہے. اس بات پر آپ نے ایک سندھی میں شعر پڑھا، ڈی گھارے ڈم سی راتی مہار جیلا بپار تیلا بڑی میں سونی. مانا دن کو تو اپنے میاں کے ساتھ گزارتی ہے اور رات کو مہیوال کے ساتھ جا کے گزارتی ہے. سونی کا قصہ ہے. دو پار کی جب بات آئی تو تب ڈوب کے مری سونی. یہ سونی مہیوال کا قصہ آپ نے اس وقت کے جو بزرگ تھے نا، یہ یا شاہ بھٹائی ہے، سچل ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید ہیں، صاحب محمود، یہ مثال اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ مزہ آئے نا، اس سے یہ لوگ سمجھ جائے کہ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اور فائدہ ہے کہ یکسوئی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کرے. اس بات پر مثال بیان کی کہ اگر کوئی آدمی سفر میں بتائے ہوئے راستے پر جا رہا ہو لیکن اس کی عادت ہو کہ ایک دن ایک طرف جائے دوسرے دن دوسرے طرف جائے تو کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح طالب المولا کے سوا دوسرے سب تعلقات، طالب المولا کو اللہ کے سوا دوسرے سب تعلقات توڑنے ہوں گے. اور یک رخ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم رکھے گا تب وہ منزل مقصود کو پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا. رات نمبر 58 فرمایا کہ یارو جو کچھ کرنا ہے آج ہی کر لو اس دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا. جیسا کب تمہارے اور ہمارے بیچ میں مناسبت تمام پوری ہے. یعنی پیر کامل کی زندگی میں ہی اگر ہر چیز کی جائے، اور صاحب محمود مکمل تھا، کامل اکمل مکمل فنا اور بقا، تو آپ نے کہا میرے سامنے کرو گے تو روحانی طور پر تمہاری مدد کروں گا، ظاہری طور پر مجھ سے ملنے آتے ہوئے ہر چیز ہے، کیونکہ ہم ظاہراً تمہارے پاس بیٹھے ہیں. یہ بات ہمارے بات کسی دوسرے سے نہیں سنو گے.
पीर के बगैर और कोई होगा उस्ताद होगा, लेकिन पीर तो वालिद होता है ना, रूहानी सच्चा। तो रूहानी वालिद जो है वो तो सज्जन होता है अपना। तो उसके सामने अगर वो चीज तय की जाए जो मकसद है, जो एम है, तो फिर अपना मुर्शिद सामने हाल होता है। आपने फरमाया अगर हम नहीं रहेंगे बाद में अफसोस करोगे, लेकिन अफसोस काम नहीं आएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रात नंबर 59 है। फरमाया कि हिम्मत तालिब की ये है कि सारा का सारा अपने खुद ही मना हस्ती से निकला है। सुभान अल्लाह, मना फनात इख्तियार करें। इस बात पर आपने फरमाया, ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम खुद को भूल जाओ तो फिर दोस्त के तलब की कोई एहतियाज नहीं। इसी तरह ख्वाजा शिराज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का शेर पढ़ा, मन आशिक और माशूक के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। पर्दा तो नहीं होता, लेकिन ये हाफिज तो खुद ही हिजाब है। माना मैं जो खुद ही है वो खुद ही, माना मैं हूं तो मैं वाला खाता है ना, ये हिजाब होता है। अगर तू है तो ये फनात होती है। इसका मकसद ये है। रवायत नंबर 60 फरमाते हैं कि तालिब को चाहिए कि पहले अपनी खुद ही मन हस्ती से खुद को छोड़ा ले और नफ्स को हुक्म के तहत रखे और नफ्स को फरमा बरदार करे, ताकि अपनी हस्ती रिस्क को बिल्कुल खत्म कर दे और या खत्म हो जाए उससे। फिर फरमाया कि मौत क्या है, सिर्फ ख्याल को बदलना होता है, जो कि असल का रंग छोड़कर नया रंग लेता है। असल में क्या है कि मरने के बाद आदमी अपने आप को प्रैक्टिकल तौर पर समझता है कि अभी जिस्म तो लाजमी है और नफ्स हर ख्वाहिशात खत्म, खाना पीना शहवत आराम पाई सारी। अगर दुनिया में रहते हुए भी मुर्शिद के सामने उसकी एंटरटेनिंग ये सारा काम करेगा तो उसको मुतु कबुल अंत मुतु कहते हैं। जैसे हमारा आका है तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस सुनाई मैंने आपको, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर की, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये शरीयत से बाहर कोई चीज़ नहीं होती। ये अंदर हमारे नबी की चीज़ें हैं सारी। जो आपके ये जो औलिया अल्लाह जो शागिर्द हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने शागिर्दों को ये चीज़ सिखला रहे हैं। रात नंबर 61 आपने फरमाया कि तलब का शर्त यह है कि सब तलकात छोड़ दे। माना अल्लाह के बगैर जो तलक है वो नफ्स की वजह से जो होते हैं ना, वो तलक छोड़ दे और इस जान में उसको बाल बराबर भी वाबस्तगी न रहे। जहाँ रहते हैं हम, अगर दिली तौर पर इसके साथ लगा ना हो तो यही अच्छा होता है। फिर फरमाया कि तलब अल्लाह ताला की तलब वो ही कर सकता है जो इस दुनिया को नहीं चाहता। जब तक सारा का सारा आदमी इस दुनिया की मुराद से नहीं हटेगा तब तक उसको अल्लाह ताला जो बातनी मुराद है उससे वाकिफ नहीं करता। इस मकाम पर शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर आप लाए, क्योंकि आप तकरीबन 70-80 साल के बाद जो आप हुए या 50 साल का पीरियड है। सदा सोता कापड़ी मथा मोह थिया, कोटे के न पुछा ताकि अंदर अंधो या जेका जमाना सासब गुजरी गुंदरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें शिद्दत वाले गम में गर्दन झुकाए सच्चे तालब रहते हैं। देखो ना क्या फरमा रहे हैं, जिसे बिछड़ा हुआ है ना वो, इनके पास अगर आकर इस अल्लाह के तालिबों के पास आकर किसी ने मातम परसी नहीं की, सारी जिंदगानी इनकी दोस्त की फराक वाले दर्द में गुजरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवात अब्बास फरमाया कि फकीर हुए हैं जो हमेशा बुखार नंगा हो। इस वक्त सिद्दीक़ एक दो शायरी पढ़ी, न गंदी न गबरी न लांगोटी लिन भूंगा जन जा भूंगा साहब तन सामो। माना जिनको न रोई होती है न लंगोटी होती है न जिनका ये घर होता है दुनिया, तो अल्लाह ताला ज़ुल जलाल अकरम तब उनको मिलता है।
न गंदा न गबरी न लांगोटी न मजेदार खाना न विकत साहब सामो। मतलब जब इस दुनिया से हर चीज छुड़ा लेते हैं, मोतु कबल अंत मोतु कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला जुल जलाल इकराम जो उनके सामने ही होता है। ये मोतु कबल अंत मोतु वाला सबक है। रात नंबर 63 आप फरमाते हैं कि तालिब को चाहिए कि दिल के दरवाजे पर खुद को कुर्बान कर दे और अपने सारी हिम्मत दिल को हाथ में लेने पर खर्च कर दे। जब तक तालिब का दिल हाथ में नहीं आता तब तक वो, जब तक मतलब कलम जिक्र हासिल न हो उसको, तब तक जुबान जिक्र करता रहे। लेकिन जुबान जिक्र से कुछ होना नहीं है, क्योंकि जुबान जिक्र जो है वो जुबान पर रहता है। सुभान अल्लाह। रवायत नंबर 64 एक दिन किसी मुरीद फकीर ने अपने कसूर हिम्मत और इज्जत व तलब के सबब मतलब न मिलने और मारूम रहने की आप साईं महमूद साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह से शिकायत की। माना मुझे हिम्मत नहीं है इतनी, और तलब में भी कमजोर हूँ और सारी कमजोरी के बाद जो चीज चाहता हूँ नहीं मिलती। साईं महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह से शिकायत की। इसके जवाब में आप साईं महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीद को कहा, यार हिम्मत कर, हिम्मत के बगैर मकसद नहीं मिलता, इन फालतू बातों से कुछ होने वाला नहीं है। फिर आपने इस किस्से को दोहराया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भी ज़ुलेखा सलाम अल्लाह ताला ने 7 कोठे में बंद किया, तब 7 दरवाजों को ताले लगाए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ से तो मुझे रिहाई मिलना मुश्किल है, तो आपने हिम्मत की। तब 7 दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और कुफल जो है दूर जाके गिरे। तब उस फकीर को आपने कहा कि तब उस फकीर ने आप साईं महमूद की खिदमत में अर्ज की, हजरत आप हिम्मत करने की ताकीद कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि हिम्मत क्या है। तो साईं महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह क्योंकि पूरे कामिल थे, आपने फरमाया कि हिम्मत ये है कि दिल का मकसद मन एम जो होना चाहिए। मुरीद को चाहिए कि जिस चीज के हासिल करने के लिए कसद करे तो अपने दिल को उस कसद से न रोके, जो अल्लाह ताला की तरफ जाता है रास्ता, उससे अपने आप को न रोके। तो जरूर वो चीज उसको हासिल हो जाएगी। फिर शाह अब्दुल लतीफ बेटा रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ा, जा जा जो न पसंद जै ला जोगी थिया, ताता का पड़ी वरे हुआ मेरा तोड़ी। माना जब तक न देखे वो मंजिल जिसके लिए जोगी बने थे, तब तक तड़पती रातें गुजरती हैं उनकी। माना अल्लाह की जो तालब है, असल में क्या है कि हमारे दोस्त हैं, अब क्या बताऊं उनको, मेरा भी उनके साथ ताल्लुक कभी भी है। तो बात यह है कि अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह सूफी मुसलमान दरवेश थे, उनकी शायरी तरीकत की तरफ जाती है। तो लेकिन क्या बात की जाए, हर चीज को वो दूसरी तरफ ले जाते हैं, मुझे तो पता है। बिस्मिल्लाह। रात नंबर 65 फरमाया कि फकीर अजीब नेमत है, लेकिन ऐसा मर्द चाहिए कि जो अपने दुनिया हयाती में इस नेमत का हासिल करे, इस दुनिया में रहते हुए हासिल करे। फिर शाह अब्दुल लतीफ बेटाई का एक बेत पड़ा, बुझ पंहिंजे गुज से रिंद रसाई लाए। माना एक दोस्त जो रिंद जो होता है अल्लाह ताला की मोहब्बत का जाम पीने वाला, तो उसको कहता है कि वहां पर पहुंच जो तुम्हारा बातन है, अजल उबो आए, माना मौत तुम्हारा तो ऊपर खड़ा है, पुठी तो पुल वठो, तो तुम्हारे पीछे तो खड़ा हुआ है मौत, इसलिए हिम्मत करो, कामयाब हो जाओगे। फिर फरमाया कि पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। देखो ये बता रहा असल चीज, पढ़ा हुआ जो ज़ाहिर आंखों से वो काम नहीं आएगा, दिल का काम जो हाल है वो काम आएगा। जैसा कि किले को घेरे में लेकर फतेह करने के लिए बाहर से लश्कर नहीं आता,
बाहर से तो आता है लेकिन अंदर के जो होंगे वही काम करेंगे। अंदर से अगर दरवाजा खुल गया तो किला ला ला का खुल गया। रात नंबर 67 फरमाया कि एक बुजुर्ग ने हक के तालबों को जात के फिक्र का तस्वर फकत एक बालशत लती वक्फा से बताया। और हम कहते हैं कि फिक्र को दिमाग से इतना ऊपर करना चाहिए कि बेनियात में जाकर पढ़े। इस बुजुर्ग ने बिलशत मुकर किया था लेकिन मुरीदों को इस किस्म का तस्वर फिक्र का से बचना चाहिए। वो इसलिए बता रहे थे कि फिक्र मना ये मुराकबे में तस्वर होता है तो वो उसकी तरफ देखते हैं, लती वक्फा मोहम्मद ही होता है उस तरफ। तो आपने कहा उसको और भी आगे ले जाओ जहां पर पहुंचने का हक होता है। रवायत नंबर 68 है, फरमाया कि जब दिल खराब और साफ हो जाए तो जो भी रंग उसको दोगे वो इख्तियार करेगा। सुभान अल्लाह। फिर आप एक शायरी लाया, उसका तर्जुमा है, अगर दिल को तुम साफ कर लो तो मिसल आईने के। रात नंबर 69 है, फरमाया कि फकीर तालिबुल मौला को चाहिए कि दिल का ताल्लुक औलाद से न रखे, माना दिली मोहब्बत होगी तो नुकसान पड़ेगा, और उनके साथ दिली मोहब्बत और दोस्ती न रखे और उनको अपने ऊपर गुस्ताख न करे, क्योंकि फकीर का पेवंद अल्लाह ताला जुल जलालुल इकराम के साथ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। फिर एक फारसी शेर लाए हैं आप, तर्जुमा है कि खलक माना आम आदमी से ताल्लुक रखना इजाब वाला, और उसमें ला हासिल होती है, माना नामुरादी मिलती है उससे। जब अल्लाह के सवा हर चीज से ताल्लुक तोड़ोगे तब अल्लाह ताला के वासिल बनोगे। फिर फरमाया, रायत नंबर 70 है, फरमाया कि जो दम अल्लाह ताला जुल जलालुल वल इकराम की याद में गुजरे, माना जो कल्ब जिक्र भी हो, तो सारी उम्र की इबादत से अफजल है। खाकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गों के गुजरा, उसका आप शेर लाए हैं कोई तर्जुमा है, 30 बरसों के बाद खाकानी को मालूम हुआ कि एकदम अल्लाह ताला जुल जलालुल वल इकराम की याद में मशगूल रहना हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क से अफजल है। रवायत नंबर 71 है, जब शाहनातला सूफी जोक शरीफ जो है जिला अभी सिजाल के जमाने जिला ठट्टे में दाखिल था, जब हजरत शाहनातला जोक शरीफ वाले को मकरब व फरेब से ठट्टे के मुगल नवाब, तब ठट्टा जो है डायरेक्ट कब्जा था, मुगलों का कब्जा किया था, तो मुगल नवाब के हुक्म से शहीद करने के लिए ले जा रहे थे। कुरान शरीफ ले आए, उसके ऊपर कहा कि भाई आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर गए। तातारी के औलाद थे, उसमें दूसरे भी थे, सिंध के कुछ थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो जानवर है। अब उस वक्त जो कल्लोड़ा हुक्मरान के ऊपर गाली गलौज दी जाती है सिंध में, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि साईं शाहनातला रहमतुल्लाह अलैह को की शहादत एक तो लिखी हुई थी, दूसरी है कि बदखसलत जो है एक हुक्मरान होता है। अब चूंकि उनका जीएचक्यू जो था वो नई दिल्ली में था, मान दिल्ली में था मुगलों का, उन्हीं नस्ल का नवाब था मुगल, तातारी की औलाद, तो वो दरेश नहीं था, तो जानवर था। वायद से फिर गया और साईं शाहनातला रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने लगा। लेकिन आपको अल्लाह ताला ने इसकी इतला दी, औलिया अल्लाह को इतला होती है। तो जब जा रहे थे तो आपने एक शेर पढ़ा, जो साहिब दिल जो फकीर था वो खड़े थे, समझ रहे थे कि साईं क्या कह रहा है। तब रवान की जो सूफी शाहनातला जोक शरीफ वाले ने दिल मुरीद को कहा कि हलंदी जेडियो ए मेरी सहेली कोई चलेगी, सूली सद थो, सूली का बुलावा आ गया, कोई चलेगी। रवान किया दुनिया से।
तर्जमा कोई चलेगी हमजोली सूली की पुकार पर। तब उस साहिब दिल मुरीद ने कहा, जवाब दिया अपने पीर को, वञण तिन पियो जे नालो गिननी जो, माना जाएंगे वही जो नाम लेवा साजन के। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जुल जलाल इकराम का जो नाम लेते हैं वही फांसी पर चढ़ते हैं। जैसे हज़रत मंसूर था, सूली पर चढ़ा, टुकड़े टुकड़े किया गया बगदाद में। वो हमारा शायर ही है ना, गाई जाती है, चढ़ा मंसूर सूली पे वाकुफ था वो दिलबर, मना अपने दिलबर से वाकुफ था अल्लाह ताला से, इसलिए उसको मजा आ रहा था, वो तकलीफ में नहीं था। कोई अगर मंसूर से पूछता, कोई हजरत इमाम हुसैन अली मकाम मज़लूम करबला से पूछता, जब शिमर मलौन आपके ऊपर खंजर चला रहा था, तो बुजुर्गों ने तो कश्यप में पूछा, लेकिन देखो ये राज किसी को मालूम नहीं है। मिठाई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसको राज को जान लिया ना, तो आपने कहा कज़ियो करबला जो नसुर नाज, यानी रिंद परोन राज कज़ियो करबला, जो बना करबला का जो वाक़या हुआ था वो एक नाज है जो ज़ाहिरी तौर पर तो मज़लूमियत है, बातिनी तौर पर एक वादा था जो हुजूर से किया गया। वो आप इतनी, यानी कि उसमें इमाम हुसैन अली मकाम जो करबला में खड़े थे, सारे बच्चे दोस्त यार शहीद हो रहे थे, उसमें इतनी बुलंद हिम्मत थी, इतनी थी, इसकी कोई मिसाल क़यामत तक नहीं हो सकती। रिंद परोड़न राज कज़बा, रिंद जो अल्लाह ताला की मोहब्बत का जाम पीते हैं उनको उस राज का पता चलता है। वैसे आमतौर पर तो नहीं होता, आमतौर पर हमारे उलमा कराम हर तबके के अपनी अपनी उसकी माना लेते हैं, लेकिन ये मल्लम यजुकलम यदर, यानी तर्जमा जो नहीं चखता वो नहीं समझता। तो ये सारी बातें तो हैं ना। रात नंबर 72 है, फरमाते हैं कि जो आदत अच्छी या बुरी हैं वो सब हस्ती से तलब रखती हैं। अल्लाह ताला जुल जलाल वल इकराम की तलब तब भी हासिल होती है जब आदमी अपनी हस्ती से निकल जाए, मनफानी हो जाए, और उस हस्ती से भूलना और मोह होना सा गल्ब मोहब्बत की नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की जब तक मोहब्बत गल्बा नहीं करेगी तब तक इस हस्ती में फंसा रहेगा। वो मोहब्बत आएगी तो तब काम होगा। फिर आपने कहा हस्ती के फना हुए बगैर कोई इबादत नहीं है। अब वो जो रुतबा एहसान है अल्लाह को देखो, हकीकत ये भी इसका ताल्लुक भी फनात से। ऐसे तो नहीं है कि अल्लाह को कोई डायरेक्ट आंखों से देखे, ऐसे नहीं होता। जो फनात हासिल होती है ना, कामिल अकमल, तो उसके अंदर की आंखें जो खुल जाती हैं बातनी, और उसका इमेज जो है उस नूर अक़दस का सामने आ जाता है, मुसले पर अपने मौला को देख रहा होता है। और हालात ये होते हैं कि अम्मा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह तआला अलैहा जब तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं तो आज़ान हो जाती फजर की, आप सिर्फ एक ही रकात पढ़ लेती तो कहती कि मौला है तो सुबह हो गई। तो ये फनायत है। या मौला अली से पूछा कि बताएं कि आपने अल्लाह को नमाज में देखा? आपने कहा मैं पहले अल्लाह को देखता हूँ फिर अल्लाह अकबर कहता हूँ नमाज के लिए। तो ये भी फनायत है बहुत बड़ी। फिर मौला अली हुजूर के ज़माने में तीर का टुकड़ा फंस गया पाँव में, अब वो अंदर में इसी तरह फंसा हड्डी वगैरह में कि ज़ाहिर निकालते हुए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। हमारे इस ज़माने की तरह तो नहीं थे आदमी कि भाई इंजेक्शन लगाओ सुन करने की, सुन हो जाए फिर निकालो। उस वक्त ये चीज़ें मुयसर नहीं थी। तो हुजूर ने कहा कि अली नमाज के लिए खड़े हो जाओ। मौला अली जैसे खड़े हो गए तो हुजूर ने साहबा को कहा कि अब निकालो उसकी। निकाला, पट्टी बांधी है वो अली। मौला ने नमाज जब खत्म की तो कहता है कि ऑपरेशन हो गया। उन्होंने कहा सब कुछ हो गया। तो आपने कहा मुझे पता ही नहीं चला। तो फनायत की वजह से जब रूह जिस्म का ताल्लुक खत्म हो जाता है ना तो जिस्म सुन्नी हो जाता है बस। तो आपने फरमाया कि तो हस्ती की
ہستی کی فنا ہونے کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی بے فائدہ ہوتی ہے، نماز منہ پر ماری جاتی ہے. اللہ معاف کرے، حالات یہ ہیں ہمارے. اور ہستی کے فنا ہونے کے بعد عبادت دوسرے قسم کی، مانا وہ رتبہ احسان والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر ایک بزرگ کی شاعری لائے، اس کا ترجمہ ہے کہ عابدوں کی نماز رکوع و سجود ہے اور عاشقوں کی نماز وجود کا ترک کرنا ہے. اب اس روایت کو ادھر روکتے ہیں. چوتھا روایت بیان ہو چکی ہے، تو پھر آگے انشاءاللہ تعالی 72 روایت بیان ہو چکی ہے. 73 سے کل شروع کریں گے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ دیکھنے والے سامعین جو ہوتے ہیں انسان ہے تنگ ہو جاتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.